Okay. So you can have angular displacement. Angular displacement. Angular displacement को हम define करते हैं that's angle traversed in a given time. कि body अगर move कर रही है तो हम general circle के case में करते हैं but we will apply it to other cases also. So you can read angular displacement. Angular displacement is angle traversed by the body. Angular displacement is angle traversed by the body in a given time. Angle traversed by the body in given time. For example, if a body is moving in a circular path, if a body is moving in a circular path of radius, body is moving in a circular path of radius r with center at O. Body is moving in a circular path of radius r with center at O. Then at time t is equals to 0, the body is at point P1. At time t is equal to 0, the body is at point P1. And at some later time t, the body is at point P, P2. सर एक बारी रिपीट करना. At any time t is equals to 0, the body is at P1. And at any time t, the body is at P2. Thus, angle traversed by the body. Thus, angle traversed by the body, as shown in the figure, is theta. As shown in the figure is theta. Relative to center of circular path. Why I have said relative to center of circular path angle transversed is theta? Because अगर मैं जो पॉइंट है ऑब्जर्वर को से ऑब्जर्वर O की जगह से इमेजिन अगर मैं ऑब्जर्वर को O1 पे ले लेता, अगर से ऑब्जर्वर यहाँ पे है O1 पे, तो इसके अकॉर्डिंगली भी बॉडी ने एंगल थीटा ही कवर किया होगा अगर P1 से P2 तक गई. No, sir. No, sir. कितना कवर किया होगा? Less than. लेस देन नहीं, कितना? वैल्यू बोलो. अगर ये थीटा है तो half of theta. अगर बॉडी P1 से P2 तक गई, मैं कह रहा हूँ O ने ऑब्जर्व किया कि बॉडी ने एंगल थीटा कवर किया, इसने ऑब्जर्व किया कि बॉडी ने एंगल थीटा बाय 2 कवर किया. ये थीटा बाय 2 ही होगा हमेशा, Yes. Yes, sir. sir. बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो अगर रिलेटिव टू सेंटर एंगल थीटा कवर किया, रिलेटिव टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस थीटा बाय 2 कवर किया, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, देख कौन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम एंगल बोलेंगे. सो इसलिए मैंने लिखा कि रिलेटिव टू सेंटर द एंगल ट्रांसवर्स इज थीटा. Relative to center, the angle transverse is theta. The units of angular displacement are radians in SI. The units of angular displacement are radians in SI. Next paragraph में लिखो. If angular displacement is small, it is a vector quantity.
It is a vector quantity. And its direction can be found. And its direction can be found by curl rule. And its direction can be found by curl rule. That is, we curl the fingers of right hand. That is, we curl the fingers of right hand in the direction of. We curl the fingers of right hand in the direction of motion of the body. And thumb gives us the direction of angular displacement. Thumb gives us the direction of angular displacement. So towards the To curl the fingers of right hand in the direction of motion, and thumb gives us the direction of angular displacement. The direction of angular displacement will always be perpendicular to the plane in which body moves. Perpendicular to the plane in which body moves. For clockwise rotation, clockwise perpendicular outwards या perpendicular inwards to the plane. Clockwise में. inwards. Inwards. और इस case में it will be perpendicular to the plane outwards. So you can write for clockwise rotation and for clockwise motion, the direction of angular displacement is. So perpendicular to the plane के बाद क्या बोला था? वही लिखा रहा हूँ. For clockwise rotation, the direction of angular displacement is perpendicular to the plane inwards, and for anti-clockwise direction, it is perpendicular to the plane outwards. For anti-clockwise direction, it is perpendicular to the plane outwards. A large अगर theta है तो it will not be a vector because अगर थीटा लार्ज है तो हम वेक्टर क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज रीजन कल क्या बताया था? Reason, if theta is large, it's not a vector because It does not it does follow not obey the laws of vector addition. Theta 1 plus theta 2 will not be equals to theta 2 plus theta 1. So इसको नोट में लिखो इसके नीचे. If सर angular एंगल कितना लार्ज होना चाहिए ताकि वो ना ऐसा हो? नहीं होती, 5 डिग्री से कम ही वेक्टर लेते हैं बस. ओके सर. So you can write if angular displacement is large, it is not a vector quantity. If angular displacement is large, it is not a vector quantity because it does not obey the laws of vector addition. That is, for small angles, के बाद क्या था सर? it is not a vector quantity because
A small angle है तो it obeys the laws of vector addition. So d theta 1 plus d theta 2 is equals to d theta 2 plus d theta 1. So, हाँ जी. सर लार्ज एंगल क्यों नहीं फॉलो करता, स्मॉल एंगल ही क्यों करता है? कल प्रूफ नहीं किया था हमने बुक का एग्जांपल लेके कि बुक को 2 बार रोटेट किया तो वो फाइनल रिजल्ट सेम नहीं आ रहा. यस सर. तो वही लिखाया है सिर्फ थ्योरेटिकली. अब अगर रेसनिक या यूनिवर्सिटी देखोगे तो उसमें आपको ये बुक वाले डायग्राम्स भी मिल जाएंगे. उन्होंने डायग्राम बना के शो किया होगा. नेक्स्ट इज angular velocity. Angular velocity. Angular velocity. The rate of change of angular displacement of the body. The rate of change of angular displacement of the body with respect to time. The rate of change of angular displacement of the body with respect to time is called angular velocity. The rate of change of angular displacement of the body with respect to time is called angular velocity and is denoted by omega. Sir, with respect to क्या दिया? With respect to time. सर ओमेगा का साइन हमने जो पिछली क्लास में किया था वो और था कोई की वो यही मतलब इसी का यही कुछ था और? यही था ओमेगा का यही साइन होता है. यहाँ पे कैपिटल ओमेगा होता है. ओम. सर ये भी यस ओमेगा ये ही बात. होता है. ये कैपिटल ओमेगा होता है. ओके सर. तो सर एंगुलर वेलोसिटी इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, जो इससे नहीं छोटे कर वाला सकते. उससे? इससे नहीं कर सकते. से t is equals to 0 पे बॉडी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है. अगर मैं आपसे पूछूं थीटा टाइम t2 माइनस t1 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सर थीटा 1 सर थीटा 2 माइनस थीटा 1. हम ले रहे हैं कि t is equals to 0 पे बॉडी यहाँ थी. टाइम t1 में इट कवर्स एन एंगल थीटा 1 और t2 में इधर पहुंच गई. तो अगर मेरे को बताना है t2 माइनस t1 में, फिर तो यही एंगल बनाना है, ये छोटे वाला थीटा 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1. तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? x2 minus x1 upon t2 minus t1. So average angular velocity is theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1. और इंस्टेंटेनियस लिखते थे हम वेलोसिटी को कैसे लिखते थे? dx by dt. इस केस में d theta by dt. So एवरेज वैल्यू लिखोगे तो डेल्टा थीटा by डेल्टा t. इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो d theta by dt लिखेंगे. So डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसको. So you can write as shown in the figure. As shown in the figure, if at t is equals to 0,
if at t is equals to 0, the body is at point P naught. It moves in anti-clockwise direction. It moves in anti-clockwise direction. At t is equal to 0, At t is equal to 0, the body is at P naught. It moves in anti-clockwise direction. It moves in anti-clockwise direction. And at time t1, it is at point P1 transversing. At time t1, it is at point P1 transversing an angle theta 1. And at a later time t2, the body is at P2 and has transversed an angle theta 2 as shown. Thus in time interval t2 minus t1, सर एक बार रिपीट करना. t is equals to 0, but it's at P naught. At t1, it is at P1 transversing an angle theta 1, and at later time t2, it is at P2 transversing an angle theta 2. इंग्लिश है, अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई रट्टा थोड़ी मारना हमने. Thus in time t2 minus t1, angular displacement of the body is theta 2 minus theta 1. Average angular velocity is the ratio of total angular displacement to the total time in which that angular displacement takes place. सर रिपीट करना. इन टोटल टाइम in which that angular displacement take place. excuse me sir. हाँ जी. सर जैसे थीटा अगर बड़ा होगा तो तब हम किस मेथड से फाइंड करेंगे? क्या? सर जैसे हमने बोला दोबारा? था कि जब थीटा बड़ा होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर नहीं होती है. वो कंसेप्चुअल के लिए लिखा है, ये स्कूल की डेरिवेशन है. एनसीईआरटी सबको वेक्टर ही मान के चलती है. मतलब वो अपने आप से एज्यूम करके करते हैं कि थीटा स्मॉल ही ले रहे हैं हम. एनसीईआरटी में कहीं ये भी नहीं लिखा होगा कि लार्ज वैल्यूज के लिए स्केलर होता है. सर कंपटीशन में तो एनसीईआरटी वाला नहीं चलेगा. नहीं, तो ये जो डेरिवेशंस या ऐसे डेफिनेशंस दिखते हैं, डेफिनेशंस वगैरह ये स्कूल का काम है. ये कंपटीशन में डेफिनेशंस कभी नहीं आती. नॉन मेडिकल को तो 100% न्यूमेरिकली आने हैं. थ्योरी का बहुत आपकी अच्छी किस्मत होगी तो जेई मेंस में 1 या 2 थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अलग ही चैप्टर हैं जिनमें से आते हैं. आईआईटी में कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता. 100% न्यूमेरिकल्स ही आएंगे सिर्फ, कोई थ्योरी का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. और मेडिकल में हम कहते हैं कि बहुत थ्योरी आती है, कि नीट का जो पेपर होगा उसमें काफी थ्योरी आएगी. काफी थ्योरी का मतलब होता है कि 45 में से 7-8 क्वेश्चन थ्योरी के भी आएंगे. काफी थ्योरी होती है वो, 7-8 आ गए तो.
बाकी उनको भी 36, 37, 38 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं. So you can write direction of angular velocity. Direction of angular velocity. So you can write it is same as that of angular displacement. Direction of angular velocity. It is same as that of angular displacement. जैसे velocity और displacement की same होती है. So it is same as that of angular displacement. And given by right hand curl rule. And given by right hand curl rule. And is also perpendicular to the plane of motion. And is also perpendicular to the plane of motion. सर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ ही सकती होगी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव मतलब क्या? सर मतलब वो ऑपोजिट वेक्टर्स में नेगेटिव का मतलब क्या? वेक्टर्स में नेगेटिव का क्या मतलब होता है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट किसके ऑपोजिट? सर जिसको हम पॉजिटिव मान. तो बस फिर नेगेटिव का मतलब ही क्या है? आप जिस आप नेगेटिव दिया तो आप उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी. क्या फर्क पड़ता है उससे? So you can write angular acceleration. Angular acceleration. It is rate of change of. It is rate of change of angular velocity of the body with respect to time. It is rate of change of angular velocity of the body with respect to time. There is alpha is equals to d omega by dt. Angular acceleration is denoted by alpha. So alpha is d omega by dt. स्केलर होगा, वेक्टर होगा और डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा की. इफ इट्स डी ओमेगा बाय dt, वेक्टर साइन तो मैंने डाला ही है उसके ऊपर, मतलब वेक्टर तो है वो, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? अल्फा की. Same as angular velocity. Same as angular velocity. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती थी? सेम एज वेलोसिटी. नहीं हो सकती, डिफरेंट भी हो सकती. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपने किसी को प्रिसाइजली बतानी है, आप क्या बताओगे? अभी तक तो आप बचे हुए, स्कूल खुला नहीं, स्कूल खुल जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, आप स्कूल गए, 9th के बच्चे ने पकड़ लिया कि आप शक्ल से इंटेलिजेंट लगते हो और आपसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछी तो उसे क्या बोलोगे? In the direction of motion. Depends on situation. डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. अच्छा, यहाँ तो उसको कह देना कि तेरे लेवल का नहीं है, तेरे को समझ नहीं आएगा, है ना. ये थोड़ी बोलेंगे हमें नहीं आती. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन की होती है. यहाँ 1D में हम चल जाता है. 1D में हम कह देते हैं अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में. बट अगर किसी को जनरलाइज बताना है 1D 2D और एनी काइंड ऑफ मोशन, you say that acceleration is always in the direction of change in velocity. So alpha is always in the direction of change in angular velocity. इसमें भी हम कह सकते हैं angular velocity बढ़ रही है तो angular acceleration और angular velocity same direction में, और अगर angular velocity कम हो रही है तो they are in opposite direction. मतलब एक positive एक negative तो कम होगी, दोनों positive या दोनों negative लेंगे तो बढ़ेगी. So you can write it is a vector quantity. It is a vector quantity. And its direction is, it is a vector quantity and its direction is same as that of change in angular velocity. And its direction is same as that of change in angular velocity. If angular velocity is increasing,
if angular velocity is increasing, omega and alpha are in the same direction. If angular velocity is increasing, omega and alpha are in the same direction. And if angular velocity is decreasing, omega and alpha are in opposite direction. Omega and alpha are in opposite direction. ठीक है, अब नेक्स्ट डेरिवेशन करने से पहले आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के. अगर साइन का कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट्स cos fx into differentiation of fx. तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं कि साइन के डिफरेंशिएशन cos fx into differentiation of fx. जैसे मान लो अगर ये sin 2x होता है fx की जगह, तो क्या बनता फॉर्मूला? अगर ये sin 2x हो तो sir cos 2x into cos cos 2x into differentiation of 2x, and differentiation of 2x will be sir 2, तो 2 cos 2x आ जाता. whereas अगर ये cos 2x होता तो ये आ जाता minus sin 2x into 2, minus 2 sin 2x. तो जो भी sin या cos के आ गया उसको एक बार ही फिर से डिफरेंशिएट करना. इट कैन बी एनी वैल्यू. जैसे मैं कह दूं sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन cos x square into cos x square into 2x. cos x square into 2x. तो ये फॉर्मूले आपको दो याद रखने पड़ेंगे which will be used off and on. अब धीरे धीरे मतलब यूज होने शुरू होंगे. tan का फॉर्मूला भी 11th में यूज नहीं होता, sin और cos यूज होंगे किसी जगह पे. अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी? अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक्सेलरेशन को लेते थे कि एक्सेलरेशन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम सिर्फ स्पीड पे ज्यादा फोकस कर रहे थे 1D में कि स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है. प्रोजेक्टाइल में हमने एक्सेलरेशन के कारण डायरेक्शन चेंज की, बट वहां पे भी हमने कहीं पे ये नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल रही है. बिकॉज दो एक्सेलरेशन हो जाएंगी. जो एक एक्सेलरेशन है जो स्पीड को चेंज करेगी, एक एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन को चेंज करेगी. तो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, मान लो मेरे पास एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है, ये किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट से शुरू हुई थी इसकी मोशन, t is equals to 0 पे, और ये p1 पे पहुंच गई एट सम टाइम t. इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं. ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0. 0,0. ये रेडियस r. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x y. x कितना और y कितना? ऐसे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को पूरा कर दूं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y, मतलब ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y. इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना है? sir x upon height x अपॉन Yes. हाइट. हाइट तो परपेंडिकुलर है. हाइपोटेन्यूज क्या है?
सर r, तो cos थीटा कितना हो गया x upon r x अपॉन r, तो x कितना हो गया cos थीटा अगर x ओवर r है तो x क्या है r cos theta r cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा किसके इक्वल है y upon r y y upon r y कितना हो गया r sin r sin theta r sin थीटा। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। so yes पोजीशन वेक्टर क्या होता था सर वो रीजन के रिलेटिव डिस्पोजिशन पे था एंड रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब 1D में तो हम सिंपल लिख देते हैं, 1D में हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं dx by dt is velocity in x direction, dy by dt is velocity in y direction। हम ऐसे ही लिखते थे, जिस रेट से y कोऑर्डिनेट बदल रहा है वो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस रेट से x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बदल रहा है वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूं, ये xi है या xj है, ये साइड I ओ ए सर xi कैप एंड दिस इज y j yj कैप। तो मैं r को ऐसे लिख सकता हूं दैट r इज इक्वल्स टू xi प्लस yj, yes है ना। dr बाय dt क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मतलब ये हो गई टोटल वेलोसिटी एंड टोटल वेलोसिटीज वेक्टर्स में हम यही मतलब होता था इसका, तीसरी डायरेक्शन में लेते तो वो भी ऐड कर देते। yes तो अगर हम 1D में लिखते हैं कि dx by dt और dy by dt वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है x और y डायरेक्शन में, तो अगर आपको टोटल वेलोसिटी लिखनी है दैट इज dr by dt, द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर चेंजेस। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, yes sir ये सर्कल में आप कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पे वेलोसिटी होती किस डायरेक्शन में है, अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो P1 पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, tangent टेंजेंट टू द पाथ, मतलब ये डायरेक्शन। yes क्यों, मैं अगर ना मानूं आपकी बात तो सर वो बॉडी मूव स्ट्रेट ही कर रही पर क्योंकि उस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रही वो रोटेट कर रही है बड़े बड़े वर्ड यूज करने शुरू कर दिया आपने तो यार। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है ये, सर वो जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर मैंने कब कहा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैंने कहा एक बार ही, मैंने कहा सर्कुलर मोशन है, मैंने यूनिफॉर्म कब कहा। ओके सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अब आपने ये वर्ड यूज किया है तो मैं अब इसकी डिटेल में जानना चाहूंगा ना थोड़ा सा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सर जो सेंटर उसको मतलब लगा रखा है वो पाथ जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो सर जो फोर्स से मतलब उसके पाथ में आने में हेल्प करती है, तो अगर ना वो लगे वो टेंजेंट के अपने अच्छा टेंजेंट मैं अगर आपको एक बॉडी दूं और मैं बोलूं कि इस पे सारी फोर्सेस मार्क कर दो, मान लो अर्थ सन के आसपास मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, अर्थ पे सारी फोर्सेस मार्क करनी है, कौन कौन सी करोगे, अर्थ पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो मार्क करनी है,
तो कौन कौन सी फोर्सेस मार्क करूं अर्थ पे? एक तो सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, और इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल किधर? सर सन से अर्थ तक। Fc। और तो ये सन में क्यों नहीं गिर जाता? फिर सारी फोर्सेस इनवर्ड ही हैं। तो अगर सारी फोर्सेस इनवर्ड ही हैं तो व्हाई डज नॉट फॉल ऑन सन? अर्थ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती सन की तरफ? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो होती है ना, वो बाहर की तरफ को होती है। सेंट्री आप ना फंस जाओगे बेटा, बड़े बड़े नाम लेके। लो सेंट्रीफ्यूगल भी मार्क कर दी। और कुछ आप में से कोई मेरे को बता सकता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? इसको हम सर क्या ये बोलते हैं? सर सर जो ये बाहर को लगती है। बाहर लगती। किसने लगाई है फोर्स? सर ये किसने असली लगाई फोर्स है नहीं बाहर होती, की तरफ फोर्स? मतलब इमेजिनरी फोर्स होती है ये। इमेजिनरी होती। तो इमेजिनरी फोर्स को क्यों मार्क कर रहे हो? ये तो आपने इमेजिन किया ना। वैसे क्यों इमेजिन करूं मैं? आप अगर कह रहे हो ये इमेजिनरी फोर्स है तो मैं क्यों इमेजिन करूं इस फोर्स को? नहीं करता मैं, मेरी मर्जी। नहीं सर, इमेजिनरी नहीं होती। इमेजिनरी नहीं होती, क्या होती है? इमेजिनरी नहीं है, क्या है फिर? ये फोर्स है कोई? कितने लोग को लगता है ये इमेजिनरी फोर्स है और कितनों को लगता है इमेजिनरी फोर्स नहीं है? इमेजिनरी फोर्स वाले जरा बताना, पहले हाथ करना रेज जरा। इमेजिनरी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। किसी ने नहीं खड़ा किया हाथ। हाँ, मैं आपको पहले सिंपल चीज पूछता हूँ, ये तो बाद में देखते हैं। आपने फोर्स पे, मैं फोर्स पे भी जाना नहीं चाहता था, आप गए हो तो मेरे पास एक बस है जो ट्रैवल कर रही है रोड पे। विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। मेरे को इनर्शिया के बारे में कुछ आता जाता नहीं है। क्लियर? नहीं आता। मैंने ब्रेक मारी, बस ने ब्रेक मारी, तो ये पैसेंजर जो इसमें था ये आगे गिरेगा या पीछे? आगे। आगे। रीजन बताओ। व्हाई? व्हाई दिस सर पर्सन फॉल्स क्योंकि फॉरवर्ड? सर क्योंकि अगर बस की वेलोसिटी v है तो उस बंदे की वेलोसिटी भी तो v होएगी। तो ठीक ब्रेक है, तो बस को लगी है, बंदे को थोड़ी लगी है, तो बंदा तो तो मतलब थोड़ी उस हिसाब से बंदा तो मोशन में ही रहेगा ना, तो गिर के ही मोशन में रुकेगा क्यों फिर। रहेगा? एक मिनट, मोशन में क्यों रहेगा? सर मतलब कि ब्रेक तो बस को लगी है ना। हाँ, लगी, बस को ब्रेक लगी, मैं कह रहा हूँ बंदा क्यों रुक गया? बंदा क्यों आगे गिरा? सर बिकॉज बंदे को बिकॉज, थोड़ी रोका हमने। नहीं तो फिर क्या हो गया? पैर रुक गए तो बॉडी भी तो रुक जाएगी। सर सर पैर। बंदे के पैर कांटेक्ट में थे बस से, तो उसके पैर जहाँ पे थे वो रुके, अपर बॉडी नहीं रुक पाई। क्यों नहीं रुकी? बिकॉज ऑफ, वो पहले। इनर्शिया ऑफ मोशन। यस मेरे सर। को इनर्शिया तो अब आता हम नहीं, उसकी मेरे को पता था आप डेफिनेशन दे रहे हैं इनर्शिया सर। पे आओगे। मेरे को इनर्शिया आता ही नहीं, मेरे को पता था आप इनर्शिया पे आओगे। मेरे को आप एक बात बताओ, अगर आप खड़े हो, बस में खड़े थे चाहे बाहर खड़े थे, आप आगे गिरे, अगर आप आगे गिरे तो आप पे कोई फोर्स लगेगी तो गिरोगे, ऐसे कैसे गिरोगे? सर यस। तो कौन सी फोर्स लगी? ये बंदे को भी छोड़ो, बॉक्स ले लो, एक बॉक्स पड़ा है,
बस एकदम एक्सेलरेट की तो बॉक्स पीछे आ गया, तो बॉक्स पे कौन सी फोर्स लगी जो वो पीछे आ गया? आप बस में बैठे थे, आपने देखा जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो बॉक्स पीछे को स्लाइड कर गया, तो वो क्यों स्लाइड किया पीछे को? सर न्यूटन थर्ड ना। मैं अगर आपको बोलूं इस बॉक्स का डायग्राम बनाओ, फोर्सेस मार्क करो, से बस के अंदर ये बॉक्स पड़ा था, आप इधर बैठे हो, मैं अगर आपको पूछूं आपके रिलेटिव इस बॉक्स की वेलोसिटी कितनी थी जब बस चल रही थी? आपके रिलेटिव 0 0 आपके हिसाब से बॉक्स रुका हुआ था, इस पे मैंने फोर्सेस मार्क की, इसका वेट लग रहा था नीचे, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अब बस ने मारी ब्रेक, तो ये पीछे क्यों आया? पीछे कौन सी फोर्स लगी थी? फ्रिक्शन। अगर ये पीछे को आ रहा है तो पीछे कोई फोर्स लगी होगी तो पीछे को आएगा, बिकॉज न्यूटन का लॉ है F इज टू एम ए। ये रेस्ट पे था, फिर आपको लगा ये पीछे को एक्सेलरेट कर गया, तो पीछे को एक्सेलरेट कर गया तो कोई फोर्स होगी, ए तभी होगा ना जब F होगा। तो F क्या है? कौन सी फोर्स है जो उसको पीछे लेके गई? बस ब्रेक मारे या बस एक स्पीड बढ़ाए या स्पीड कम करे, ऐसे करो, या टर्न ले, तीनों केसेस में बस की मोशन एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? सर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड है। आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो? आप साथ बैठे हो बस में, नॉन एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। न्यूटन ने जो लॉ दिए थे दे वर फॉर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। आप बस में बैठे हो, आप नॉन एक्सेलरेटेड नहीं हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो बस के साथ। न्यूटन के लॉज एक्सेलरेटेड फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो तब एप्लीकेबल हो सकते हैं अगर हम एक फोर्स एज्यूम करें जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ताकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई हो सके एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में। तो हमने खुद से एक फोर्स इमेजिन की, सूडो फोर्स, जो इस पे लगी, जिसके कारण ये पीछे गया। सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स, इट्स नॉट अ फोर्स, वो हमने खुद से इमेजिन की है, नहीं तो एक्सेलरेटेड मोशन में न्यूटन के लॉ अप्लाई ही नहीं करते। बट एनीवेज, इस डायग्राम पे अगर मैं आऊं, ये फोर्स तो आपकी ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? ये किसने अप्लाई की? आप अगर कह रहे हो एफसी, तो एफसी किसने अप्लाई की? सर सन। सन ने तो ग्रेविटेशन नहीं लगाई थी, सन एक और फोर्स भी लगा रहा है इसके अलावा। सन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है या कोई और फोर्स भी लगा रहा है? बोलो। कभी भी फोर्स डायग्राम जब बनेंगे, वी नेवर मार्क सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स होती नहीं है। जो भी फोर्स डायरेक्शन चेंज कर देगी बॉडी की, जो भी फोर्स डायरेक्शन बदलेगी, फोर्सेस दो काम कर सकती हैं, डायरेक्शन बदल सकती हैं, स्पीड बदल सकती हैं। जो भी फोर्स डायरेक्शन बदलेगी बॉडी की, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। इसमें ग्रेविटेशन वो काम कर रही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अलग से कोई फोर्स नहीं है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी डायग्राम्स में मार्क नहीं होती, बिकॉज वो कोई फोर्स नहीं होती, कोई और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। समझ में आ रही है बात की? ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डायरेक्शन बदल रही है, तो इसलिए हम लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डायग्राम्स में कभी मार्क नहीं होनी। दो फोर्सेस होती हैं, एक डायरेक्शन बदलेगी और एक मैग्नीट्यूड बदलेगी।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जैसे आप कह रहे हो हमने ये सूडो कोर्स 19 किया, तो सर कोई ओरिजिनली भी तो कोई कोर्स लगी रही होगी बाहर को, तभी वो अपने पाथ में है बॉडी। तो सर ओरिजिनली कौन सी लगी कोर्स? क्या कह रहे हो आप? सर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स लग रही है सन अपनी क्यों तरफ। लग रही होगी? एक मिनट, क्यों लग रही होगी? आप क्या कहना चाहते हो, क्यों लग रही होगी बाहर की तरफ? सर बैलेंस नहीं करनी वो न्यूटन्स थ्योरम। वो यही तो बोला, न्यूटन लॉ है ही गलत। वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए थोड़ी बनाए थे न्यूटन ने। ओके सर। तो हमने न्यूटन लॉज को ठीक करने के लिए एक फोर्स खुद से एज्यूम की, नहीं तो न्यूटन लॉज गलत करने पड़ेंगे। दो ही ऑप्शन है, या तो न्यूटन लॉज को गलत कर दो, या उनको ठीक लेके चलना है तो फिर आप एक सूडो फोर्स एज्यूम कर दो। एनीवेज, इस पे आते हैं दोबारा। मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं तो वेलोसिटी हो जाएगी dr/dt। ठीक है, r तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा i कैप cos थीटा के डिफरेंशिएशन सर साइन माइनस माइनस साइन। माइनस साइन थीटा, बस काफी है। ये थीटा है, नीचे टी है। थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो सकता। ध्यान से देखो मैंने क्या किया। आप cos थीटा को डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर सकते, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड। यस सर। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन थीटा, और साथ में ये बच गया डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी होता क्या है? सर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। इधर भी ओमेगा, इधर भी, तो मैं आर ओमेगा को कॉमन ले लूं तो क्या बचा? फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। इसमें ये क्या है, आर ओमेगा? थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखता हूँ, शायद आपको समझ में आए। अगर मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है, माइनस आर ओमेगा साइन थीटा क्या है? जनरल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? वेक्टर्स में यही वेलोसिटी होती है। तो इसमें मैं पूछूं आर ओमेगा साइन थीटा क्या है? माइनस Vx दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं लिखता हूँ माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप, मतलब माइनस आर ओमेगा साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गए, आर ओमेगा साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस आई उसकी डायरेक्शन हो गई। इसका यही मतलब बना ना कि आर ओमेगा साइन थीटा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप। इसमें y डायरेक्शन में हो गया आर ओमेगा कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, और जे कैप इसकी डायरेक्शन। इसको अगर मैं प्लॉट करूं, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है? नेगेटिव आई। नेगेटिव
नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। और कितनी है ये? r ओमेगा W sin theta. आई कैप। y डायरेक्शन में कितनी है? r ओमेगा cos theta। Omega cos. अगर ये दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? सर अगर मेरे ये पास ऐसे वेक्टर्स हों, ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स हो गई, सर यस तो रिजल्टेंट क्या होगा? सर Diagonal. sin इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो कितना होगा? अगर under ये root vx है, of अगर ये vx है, ये vy है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था? Under under root root vx of square vx plus square vy plus square. vy square। तो क्या आया? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ दैट। r ओमेगा cos को थीटा प्लस sin को थीटा 1। सो स्पीड आ गई r ओमेगा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी की ओमेगा है और वो सर्कल में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है r ओमेगा। ये r ओमेगा, ये r ओमेगा cos थीटा, ये r ओमेगा sin थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल थीटा है, या वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है r ओमेगा का? vertical वर्टिकल क्लियर इतना? यस वेलोसिटी का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। मतलब आप कह रहे हो कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है? 90 90 तो ये तीसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस इन दोनों का सम कितना है? 90 90 अच्छा, ये टोटल एंगल कितना है? 180 180 तो ये एंगल कितना? 90 90 मतलब वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी आर के, यस टेंजेंट टू द पाथ। फिजिक्स में कुछ भी रट्टा नहीं होता, हर चीज का रीजन होता है। ऐसे नहीं है कि बोल दिया टेंजेंट तो मान लिया टेंजेंट और पढ़ी जा रहे हैं टेंजेंट है टेंजेंट है टेंजेंट है। आपको पता तो हो क्यों टेंजेंट है। सो हमने ये प्रूव किया कि वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। मैं एक और वे में भी कर सकता था। मैंने वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला, ठीक है। आर का फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था आर का, इसी को डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाली थी। यस अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को v डॉट आर की वैल्यू बताओ कितनी है? इनका डॉट प्रोडक्ट लो, क्या आएगा? माइनस r ओमेगा sin थीटा प्लस r cos थीटा आई कैप आई कैप, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप स्केलर नहीं होता। तो वो कट आई कैप में तो नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता? डिपेंडिंग
perpendicular दो perpendicular. वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर ही है, ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आया? यस सर। sir. मेरे पास वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी है r ओमेगा sin थीटा i कैप प्लस r ओमेगा cos थीटा j कैप। एक्सेलरेशन क्या होती है? dv by dv by dt माइनस r यही होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। यस सर। yes इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? ओमेगा साइन थीटा की। ये एक फंक्शन है या दो फंक्शन है? अब सर दो। तो अगर मेरे पास ऐसे होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v, तो क्या फॉर्मूला होता था? u u dv by dv dt by dt d प्लस plus v du by ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे एक ओमेगा एक साइन थीटा है, तो ओमेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा आई कैप। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे? r तो कॉमन है, ओमेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा। क्लियर है? मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी सिर्फ फॉर्मूला लगाया ये वाला। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगी? साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos theta cos थीटा या cos थीटा इनटू d थीटा by dt cos theta into cos d theta d theta by dt प्लस साइन थीटा d ओमेगा by dt is अल्फा। d ओमेगा by dt एंगुलर एक्सेलरेशन है। सिमिलरली इधर क्या होगी? cos थीटा की डिफरेंशिएशन साइन cos theta d theta by dt minus प्लस cos थीटा इनटू अल्फा। का d थीटा by dt क्या होता है? ओमेगा। एक तो ये ओमेगा और ये भी ओमेगा, तो इसको मैं लिख दूं ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर sin theta साइन थीटा प्लस अल्फा cos थीटा जे कैप। लिख सकता हूं ऐसे? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सर यस। ये सब सर ये स्टेप नहीं समझ आया। ये यहां तक आ गया था? यस सर। तो ये तो मैंने कुछ किया नहीं है। आर ओमेगा स्क्वायर इधर से भी ले लिया, इधर से भी, वो दोनों टर्म्स को अलग कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके
आर ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स अलग लिख ली, आर अल्फा वाली अलग लिख दी। ओके सर ओमेगा स्क्वायर में माइनस है। माइनस है ना, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और इधर सॉरी, इधर माइनस उधर आर प्लस। अल्फा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वेक्टर को अगर मैंने प्लॉट करना है, कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, या एक माइनस एक्स एक प्लस वाई, या दो माइनस एक्स माइनस वाई, कौन सी डायरेक्शन में है ये? मैं पूछूं इसमें एक्स कंपोनेंट कौन सा है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है कितना? माइनस ऑर्डर बी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और डायरेक्शन है माइनस आई कैप। और वाई कंपोनेंट कितना है? माइनस आर ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर माइनस डायरेक्शन जे माइनस जे कैप। सॉरी, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी उसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर। इसको सिमिलरली प्लॉट करूं, एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव अल्फा कॉस नेगेटिव सर पॉजिटिव है। नेगेटिव है। और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव और जो रिजल्टेंट है ये एंगल थीटा, इधर कौन सा एंगल थीटा? ये एंगल थीटा। वापस उसी पे आता हूं मैं, ये ध्यान से देख लेना है जरा मैंने कैसे मार्क किए हैं। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आर अल्फा है, इसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर है। आपने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी डेरिवेशन की नहीं होगी शायद कभी। इस पे आते हैं, आर अल्फा की डायरेक्शन कौन सी थी? वर्टिकल के साथ एंगल थीटा या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा? वर्टिकल वर्टिकल मतलब आर अल्फा की डायरेक्शन यही है जो v की है। यस आर ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, बिकॉज ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। यस मैं आपसे पूछूं इनमें से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी है, डायरेक्शन किसके कारण बदल रही है? Acceleration के दो पार्ट्स आ गए मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गई एक आर ओमेगा स्क्वायर और एक आ गई, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट में लिखूं ना तो मैं ऐसे लिख दूंगा, आर ओमेगा स्क्वायर इंटू मैं इसको लिख दूंगा मैं
Yeah, ER is unit vector along radius and ET is unit vector along tangent. तो ये जो एक्सेलरेशन है along tangent एक्ट कर रही है R alpha is acting along tangent, ये स्पीड चेंज करती है. और ये जो R omega square है which is acting along the center, it's changing the direction of motion. तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इनमें से कौन सी वैल्यू 0 होनी चाहिए? मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रही है तो आर अल्फा, बिकॉज ये स्पीड चेंज कर रही है, ये डायरेक्शन चेंज कर रही है. अच्छा, सर्कुलर मोशन में आर ओमेगा स्क्वायर 0 हो सकता है? ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? नो सर। बिकॉज डायरेक्शन तो बदलनी है सर्कल में. तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सिर्फ इतना पार्ट एक्सेलरेशन हो जाएगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फिर ये पूरी एक्सेलरेशन है. फिर इसके दो पार्ट्स हैं. आर ओमेगा स्क्वायर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आर अल्फा जो है वो स्पीड चेंज कर रहा है. आर अल्फा की फर्दर दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, बिकॉज जो स्पीड चेंज करेगी वो हमेशा जरूरी है स्पीड की डायरेक्शन में ही एक्ट करे? उससे opposite भी हो सकता No, sir. उसके ऑपोजिट भी हो सकती है. अगर स्पीड बढ़ रही है तो आर अल्फा की और वी की सेम डायरेक्शन होगी. अगर स्पीड कम हो रही है तो आर अल्फा और वी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. अब एक काम करते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं, दोबारा से लिख लेंगे कल, कोई टेंशन नहीं है. ये आपके सिलेबस की सबसे टफ डेरिवेशंस में से आती है. स्कूल के लिए इसकी एक बहुत आसान डेरिवेशन भी करा दूंगा मैं मतलब स्कूल में क्या करते हैं पहले वो भी देख ही लो, ताकि आपको ये डर ना लगे कि ये सिर्फ आपको एक फील देने के लिए कि क्यों मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले रहा हूँ, कि वो वेलोसिटी के पैरेलल होगी, या क्यों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ट्स ही होती है. सो बेसिकली उसके प्रूफ है कि क्यों इनवर्ट्स है. स्कूल में मैं बताता हूँ कितने आसानी से हम इसको ड्राइव करेंगे. अगर स्कूल में आता है कि v और ओमेगा में रिलेशन निकालो, जैसे हमने क्या निकाला था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कंपोनेंट्स बनाए, फिर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर किया तो आर ओमेगा आ गया. अब अगर मेरे को स्कूल में 2 मार्क्स में आता है तो मैं इतनी बड़ी डेरिवेशन तो कभी नहीं करूंगा. बॉडी अगर P1 से P2 तक गई तो इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो x. मेरे को बताओ एक्स आर और थीटा में रिलेशन क्या है? एंगल क्या होता है? equals to r theta. theta is equal to x upon r. लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. तो x इज इक्वल्स टू, Theta. इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx by dt is dx by dt क्या होता है? Velocity. ये प्रूफ हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्शन मार्क नहीं की. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? Acceleration. d ओमेगा by dt is Velocity. Velocity. यार अल्फा आ गया. मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका हो गया ये चैप्टर, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ते हैं इधर उधर से, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये पढ़ लिया, 90% बच्चों को फर्क नहीं पता होता आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा में क्या है. उनको ये नहीं पता होता कि आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है और आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है. रट्टा मारा भी होगा तो डायरेक्शंस ही पता होंगे. ये किसी को नहीं पता होगा कि आर अल्फा हमने अलोंग टेंजेंट क्यों लेना है, आर ओमेगा स्क्वायर हमें इनवर्ट्स ही क्यों लेना है, कि क्या रीजन है इनके. तो स्कूल में ये डेरिवेशन चल जाती है, वेल एंड गुड. मतलब प्रदीप में यही डेरिवेशन दे रखी है, वो नहीं दे रखी जो मैंने की है. तो स्कूल टीचर्स जनरली प्रदीप या दिनेश को ही फॉलो करते हैं, तो वो यही कराएंगे आपको स्कूल में. तो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है और a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये प्रूव हो गया बस. और ज्यादातर बुक्स में लिखा ही नहीं होगा कि a जो है ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, a इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सर्कुलर मोशन में बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वर्ड इंपॉर्टेंट है, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कैन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी जीरो?
A body is moving in a circular path. Can its centripetal acceleration ever be zero? नहीं. No. Centripetal acceleration का फॉर्मूला क्या है? ये तो टेंजेंशियल का है ना आर अल्फा. सेंट्रिपिटल का क्या था? Square. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Yes. ऐसे भी लिख सकता हूँ. मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम सबको पता है क्या होता है. ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. अगर ये ऑसिलेट कर रहा है यहां से लेके यहां तक, इधर से इधर जाता है एंड देन इट कम्स बैक. इसका पाथ सर्कुलर है या नहीं है? ये सर्कुलर आर्क में मूव करेगा या नॉन सर्कुलर आर्क में मूव करेगा? सर और इसका सेंटर कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ सर्कल फिर कौन सा होगा? सर जहाँ वो फिक्स्ड किया हुआ है है ना. और ये रेडियस हो जाएगा. सर. यस. सर्कल में मूव करेगा. अच्छा, पेंडुलम जब यहाँ आएगा ये एक बार रुकेगा फिर वापस आएगा या सीधा ही आ जाएगा बिना रुके? सर रुकेगा. सर रुकेगा. रुकेगा. रुकेगा तो v कितना? 0. 0. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितनी? 0. ये नीट में आया था क्वेश्चन. एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके अगर बॉडी रुकती है तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाती है. यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी जो डायरेक्शन चेंज करेगी, सॉरी स्पीड चेंज करेगी. सो ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स 0 हो ही नहीं सकती. सर्कुलर पाथ में सेंट्रिपिटल 0 हो सकती है जब बॉडी अगर किसी इंस्टेंट पे रुक गई तो. मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा. लिखा तो हमने अभी कुछ नहीं है. इस सारे को कल लिख भी लेंगे, बट इसको एक बार जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग कि क्या किया हमने. एंड आई एम टेलिंग यू ये टफ आर्टिकल है. टफ आर्टिकल्स में गिना जाता है. ऐसे पूरे +1 +2 में 3-4 आर्टिकल्स ही हैं. सो इस पे अगर मेरे को आज की क्लास लगी कल की भी लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है. बट हमने अगर ये समझ लिया तो 11th का सबसे टफ चैप्टर गिना जाता है रोटेशनल मोशन. आपका रोटेशनल मोशन में काम बहुत आसान हो जाएगा अगर ये डेरिवेशन समझ आ गई तो. बिकॉज अगर मेरे को सिर्फ इसी चैप्टर पे फोकस होता ना मैं भी ऐसे ही करा देता. पर मेरे को पता है मेरे को आगे जाके इन सब चीजों की जरूरत पड़नी है जब हमने रोटेशनल मोशन पढ़ना. तो इसलिए थोड़ी गंदे वाली डेरिवेशन कह लो मेरे को करानी पड़ेगी या थोड़ी टफ वाली करानी पड़ेगी. समझनी है, रटनी नहीं है. स्कूल में आएगी तो करनी नहीं. हमने ये वाली डेरिवेशन करनी नहीं है. तो आपको एक स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आ रहा है वो ध्यान से समझना है. एंड सेकेंडली लास्ट में जो डायरेक्शंस निकाल के बता रहा हूं मैं कि आर ओमेगा स्क्वायर जो है वो रेडियस के ऑपोजिट एक्ट कर रही है, आर अल्फा जो है टेंजेंशियल एक्ट कर रही है, वो डायरेक्शन समझनी जरूरी है ताकि आपको ये ना लगे कि हम कोई चीज रटने की कोशिश कर रहे हैं. और हमें पता है कि आर अल्फा टेंजेंशियल क्यों है, बिकॉज आर अल्फा इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. एंड आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपिटल क्यों है, बिकॉज इट्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सो इसलिए इसको एक बार ही देखना. इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा. अब इसको ध्यान से एक बार ही समझ के देखना. कल इसको दोबारा से अगर समझ में आ गई तो ठीक है, तो फिर तो मेरे को आप बता देना कि डाउट नहीं है. अदरवाइज मैं इसको रिटन में भी दे सकता हूँ कि आपको प्रिंटेड में मिल जाए ताकि हमें इतना सारा दोबारा से लिखना ना पड़े. सो वो हम कल डिसाइड कर लेंगे. बट अभी के लिए सिर्फ इसको समझ के देख लो और ये बहुत सर, काम अगर आएगी कंसेप्ट्स. हाँ जी सर अगर हो सके तो रात को ही वीडियो सेंड करते हैं अगर अपलोड हो.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो आपने संडे को असाइनमेंट डाली थी, उसके डाउट्स डिस्कस हुए थे। वो कर लेंगे डाउट्स डिस्कस। अभी तो मैं और बहुत सारे असाइनमेंट्स डालने वाला हूँ आने वाले दिनों में, फिर मे भी एक दिन रख लेंगे जब सबके डाउट्स ले लेंगे। आज भी मैंने डाल लिए जो असाइनमेंट, वो मैंने लिखा भी था, सीधा वही ट्राई करना जो न्यूमेरिकल्स में थोड़े से कंफर्टेबल है, बिकॉज मेरे को ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं चाहिए कि असाइनमेंट की हुई नहीं सॉल्व और फिर आपको लगने लग गया कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है। और जिस दिन आपको लगे कि बहुत फिजिक्स मुश्किल हो गई है, मैं आपको बीच बीच में बोर्ड वाली असाइनमेंट्स दे दूंगा, ताकि आपको लगे कि हमारी स्कूल की तैयारी तो ठीक चल रही है, अब हम उसके ऊपर की तैयारी में मुश्किल है। बिकॉज अगर मैं आपको प्रोजेक्टाइल की भी स्कूल लेवल की असाइनमेंट दूंगा तो मेरे को नहीं लगता आप में से कोई भी, किसी को भी उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं, रेंज के, मैक्सिमम हाइट के। तो वो जब इस तरह से फील हो, आप खुद ही मेरे को बता देना कि फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा टफ हो रही है, तो मैं आसान असाइनमेंट दे दूंगा। मतलब उसको आप कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह ले सकते हो कि हमारे को स्कूल लेवल का तो आता है, उसके ऊपर का लेवल तो फिर धीरे धीरे ही बनेगा ना। ओके सर।